Is that what you were saying, Saad? Saad? Yes, ma'am. Okay. So this multiplied by 100 upon 25,000. So we have three zeros in the denominator. Cancel all of them with the numerator. We have only one zero left. So we are left with 50 by 25. 25 ones are 25. 25 twos are It's equal 50. to So the 2 answer will be 2%. yes. Clear? All clear, Yes, both of ma'am. you? Okay, write this down. Write the question as well. Okay, it's a very small question. Ma'am, what did you write after 25,000? Where? Something. Ma'am, after 25,000, like you put the arrow mark and after that something I and I. Yeah, that one. Can you point it? Use the notator. I cannot Ma'am, we understand what just you're asking. erased it. Ma'am, we just erased it. Okay, oh, initial. That was initial. That means how much the population was initially. Initial means starting in the beginning. Okay, ma'am. Is that clear? Write it down, both of you. Write the question as well. Done, ma'am. Both of you. Sad, have you also written? Yes, ma'am. Well done. So that's it for today's class. I'll see you. Any doubts so far? No, ma'am. Okay. Then I'll see you guys. I'll see you guys in the next class. Bye, everyone. Okay, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Hello, good evening, Natia. Good evening, mom.
How are you doing? You good? Yes, mom, I'm good. What about you? Fine, just exams are coming over. Mom, for you? Yes, I'm currently doing my master's, na? Okay, mom. Mom, master's in? Chemistry. Oh, okay, mom. Let's wait for Muhammad and Musa to join and then we'll start. As Atya, I think I have not told you that part जहाँ पे if a functional group is directly attached to the ring तो नाम change हो जाता है, right? I think I have not explained that. I think I have missed that. Benzene? No, no, no. When functional group is directly attached to the rings, like cyclopropanoic carboxylic acid, like these type of compounds. Let me show you one example. एक minute. Okay, mom. एक. Let me change the settings. When these types of compounds will be there, have I told you these type of namings? I don't think so, mom. Yes, I think I have missed this. So let others join and then I'll explain this and then we'll study the isomerism. And let me see how much is left in this chapter. इस chapter के बाद our syllabus will be finished for pre boards, right? मतलब जो आपके एग्जाम 17th को हो रहे हैं उसका सिलेबस फिनिश हो जाएगा. बट अभी हम लोग को we have to do equilibrium, we have to do thermodynamics. दो चैप्टर बचेंगे हमारे, right? And equilibrium itself is a big chapter. Yes, mom. Mom, after that's over, can I request for classes for I Mm-hmm. think the second or the third chapter? Second chapter is that atomic structure, and the third chapter is periodic table. Which chapter do you want to study? The periodic table. तो periodic table मोहम्मद also wanted to study. दोनों लोग साथ में रखवा लेना. Okay, mom. Yes, ma'am. And ma'am, also Hello. tomorrow I Yes. have a class test for organic chemistry. You have a class test for organic chemistry. What is the syllabus? It's only organic chemistry. Like it's not for internals. Internal mark exam is on 17th. That is a Yes. practice test. Okay. So I think we have almost finished many of the topics, and today we'll try to finish most of the isomerism also. Isomerism easy है. उसके बाद I was Yes, just ma'am. seeing कि क्या क्या बचा है. उसके बाद we'll be left with electronic effects, जो एक क्लास पूरी लेगा. One class for electronic effect, and then we'll have method of purification. दो. Then we'll have three. I think we are left with two or three classes, and then this chapter will be finished. Two or three classes, matlab Monday, then Thursday. Okay, we only have 1 week. So, are you both free on Sunday? Coming Sunday? Ma'am, I am not free between 5 to 7. I'm free any other time. अच्छा, on 16th, no 16th में नहीं, 16th में नहीं, 14th में फ्री हो? Oh, yes, Yeah, mom. ma'am. दोनों? I'm free on 14th, but the thing is that I might have wait, actually, ना yeah, I'm देख free. लो आराम से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी दो क्लासेस बची हैं, एक 11th में और एक 13th में. Ma'am, I'm free on Sunday. 16th या
I don't want to take Yeah, your classes yeah. on 16th क्योंकि 16th 17th में you guys will having exams. Ma'am, I'm free this Sunday also. Okay, so ninth Saturday में I'm I'll free. arrange ninth में I'll arrange an extra class for you guys ताकि हम लोग syllabus थोड़ा pull out कर लें. And then But ma'am, I'll I am busy on like 5 to 7 UAE time, so that's the thing. when are you free? 5 I'm to free at 7. 3, like 3 o'clock UAE 3 times, o'clock you 8 o'clock. let me first convert 3 o'clock UAE time. It's 4:30, ma'am. 4:30 in India. Okay, Athiya, are you free at that time? Ma'am, when? 4:30 India time? 4:30 India time on Friday. No, on coming Sunday, 9th. On Sunday. Yeah, yeah, sure, ma'am. I'll join. Okay, so I'll arrange an extra class for you guys ताकि हम लोग का syllabus at least finish हो जाए 17 से. I don't want to take your classes on 16th क्योंकि 17 में आप लोग का एग्जाम रहेगा तो आप लोग रिवीजन कर रहे होगे ना. That's why. Oh, ma'am, तो on 16th. No, on I 9th. I'm talking about 9th. oh 9th में yeah, क्लास yeah, ले yeah. लेंगे तो 16th में क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. That's what I'm saying. Okay, ma'am. Yeah, I can ठीक join. है. यस, तो 9th में हमारी एक क्लास हो जाएगी, फिर एक 11 में और एक 14 में. तो इन 3 क्लासेस में विल ट्राई टू फिनिश द सिलेबस एंड देन 19th को हम लोग 20th को हम लोग छुट्टी कर लेंगे. ठीक है, Okay, ma'am. क्योंकि 20th में मेरा प्रेजेंटेशन है तो आई विल बी बिजी. तो 20th में आई मेक योर क्लासेस ऑफ, उसकी जगह आई टेक योर क्लासेस ऑन 9th. ठीक है, Okay, ma'am. चलो. तो टुडे आई ट्राई टू फिनिश आइसोमेरिज्म. लेट मी सी, आइसोमेरिज्म ज्यादा है नहीं हमको लग रहा है तुम लोग के सिलेबस में. लेट मी सी कितना सा है, क्योंकि Ma'am, after रेजोनेंस आ गया. isomerism, can you explain benzene again? That whole benzene area. ओके ओके, आई एक्सप्लेन दैट, नो प्रॉब्लम. मेटामेरिज्म बहुत छोटा था भाई, आइसोमेरिज्म बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. उसके बाद चलो ठीक है. अच्छा, एक चीज जो मिस हो गई थी मोहम्मद इन द लास्ट क्लास वाज दैट कि व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, उस टाइम जो नेमिंग होगी ना वो हमने नहीं पढ़ी थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स आ जाएं, लाइक दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, तो हम कैसे नेमिंग करेंगे? I think we have missed this, right, Mohammed? Atiya was saying that I also think कि हमने मिस किया है ये. We did discuss about the shapes though. हाँ, वी हैव डन दिस अबाउट द शेप, बट वी हैव नॉट डन कि अगर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर्ड है और उससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या नेमिंग होगी. ओके. I don't think so, but it's good if you यस discuss it. यस, सो आई एम सेइंग कि देखो ये एक, आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस कि जब रिंग से डायरेक्टली COH जुड़ा होगा सो वील नेम इट डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये मतलब बेसिकली नेम चेंज हो जाएंगे, ये नेम्स यूज होंगे. ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं. उससे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन आ जाए, मतलब हमारे पास चॉइसेस आ जाए कि फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है और रिंग भी है. तो हम क्या ऑप्शंस लेंगे, तो हम उस पर क्या प्रायोरिटी देंगे? तो याद रखना, प्रायोरिटी हमेशा उस कार्बन चेन को दी जाएगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा हो. मतलब सफिक्स 2 जो हमारा था ना, ऐसी ही कार्बन चेन चूज की जाएगी जिसमें सफिक्स 2 इंक्लूड हो, भले हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला कंसेप्ट है वो फुलफिल ना हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास 3 कार्बन की एक रिंग है. Hello, Musa. I was just asking these people कि they are free on 9th 4:30 India time. Are you also free on 9th 4:30 India time? I want to arrange an extra class because they have exam on 17th. 9th मतलब संडे ना? Yes. 4:30 इंडिया टाइम. हाँ ठीक है. ओके, आई जॉइन. ठीक है, ओके, या चलो चलो ठीक है. यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, एक चीज और समझो. आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मान लो हमारे पास IUPAC करना है. ठीक है, हमारे पास हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है. ठीक है, अब हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है और हमारे पास रिंग भी है। तो मैम प्रायोरिटी किस, यस हेलो, मैम मैम इज इट विच चैप्टर? वी आर, यस वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक बिकॉज टीचर, सीनियर टीचर हैज आस्क्ड मी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है पहले। यू हैव नॉट ज्वाइंड आई थिंक फ्रॉम मेनी वीक्स। Please see the recorded lectures. You will get everything. Okay, Afsa? मैम थर्मोडायनामिक इट्स नॉट फिनिश राइट? हाँ, thermodynamics because these guys have exams on 17th and उसमें ये आ रहा है and you were not there when पीरियोडिक we were टेस्ट, discussing these. पीरियोडिक Yes? टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट। नहीं, I think I don't know what exam, but team has asked me to start organic only. We are on almost on the finishing part of organic. Okay, whatever is left, whatever is there, you can discuss it afterwards. Okay, Afsa? We have to finish the syllabus before 17th. Yes, guys. So what I was telling is कि whenever there will be option कि हमारे पास longest carbon chain है, हमारे पास multiple bonds है, हमारे पास मैम function, ओनली आई वाज नॉट देयर हु डोंट हैव दैट दिस चैप्टर इन started this yes exam. बाकी सबके में, yes बाकी सबके में ये चैप्टर था, है मतलब, ओके yes। स्टार्ट करें अब? तो सुनो, वॉट आई वॉज टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूल डिस्कार्ड कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। द प्रायोरिटी ऑर्डर इज दैट द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है और डबल बॉन्ड है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, तो सेकेंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सेकेंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें भी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, अगर दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी नंबर ऑफ कार्बन को, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी रिंग को। लेकिन अगर रिंग और कार्बन में नंबर ऑफ, रिंग और कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम रिंग को चूज करेंगे। अब सबका एक एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक ऐसी कार्बन चेन है, ठीक है, अभी ये चीज समझा है, नंबर ऑफ कार्बन और रिंग। एक हमारे पास ये रिंग है और इसमें अटैच्ड है एक, दो, तीन, चार कार्बन। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो हम तो इसको ले लेंगे अपनी रूट वर्ड। क्लियर, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे भी तीन कार्बन है और हमारी चेन में भी तीन कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? रिंग को हम एज अ रूट वर्ड यूज करेंगे। तो अब रूट वर्ड देखो, पहले पहले क्या नाम हो जाता, चार कार्बन थे तो एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट एन हो जाता, ठीक है, ब्यूटेन। और क्या हो जाता ये वन साइक्लो, क्योंकि नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये हो जाता वन साइक्लो एथ मेथ प्रोप, वन साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, राइट। अब मान लो यहाँ से एक कार्बन हमने हटा दिया, अब रिंग में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है और चेन में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन में, अब प्रायोरिटी किसको जाएगी? अब प्रायोरिटी रिंग को जाएगी। तो क्या होगा रूट वर्ड? रूट वर्ड विल बी ब्यूटेन ओनली, बट नाउ प्रीफिक्स वन यूज हो जाएगा। प्रीफिक्स वन क्या हो जाएगा? साइक्लो। तो रूट वर्ड हो जाएगा हमारा साइक्लोब्यूटेन, और ये प्रीफिक्स टू क्या हो जाएगा हमारा? वन, टू, थ्री। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन से तीन कार्बन रिंग की, कार्बन की एक चेन जुड़ी हुई है, दैट इज एथ मेथ प्रोप, दैट इज वन प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ये समझ में आया नंबर ऑफ कार्बन चेन और रिंग का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है? Ma'am, यस। ma'am, you wrote propyl because there were only three carbon atoms, right? Yes, yes, yes. There were only three And carbon. cyclobute. Ma'am, why butane? It's a triangle, right? सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, प्रोपेन। थोड़ा सा सिलेबस का टेंशन आ गया मेरे ऊपर। साइक्लोप्रोपेन, एक्सक्यूज मी ठीक है। मैम, यस। ये हम अब सेम सेम चैप्टर करेंगे कि दूसरा चैप्टर कर रहे हैं? नहीं, वही चैप्टर है ये, इसमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। अभी इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक। ओके।
एक्चुअली ना वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स हो जाते हैं, बहुत सारे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो वैरायटी बहुत ज्यादा है और हमें सबके नाम सीखने हैं। तो ये एक चीज मिस हो गई थी मेरे से। तो अभी मुझे याद आया जब आई वॉज टीचिंग अनदर गर्ल, तो मुझे याद है कि हम तुम लोग को तो ये बताया ही नहीं। तो बाय द वे, अगर कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना, ठीक है। मान लो एक और, जल्दी से हम फिनिश कर रहे हैं इसको। मान लो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, 4 कार्बन की चेन है, इससे डायरेक्टली ओ एच जुड़ा हुआ है, ठीक है, या ओ एच छोड़ो, सी ओ एच जुड़ा हुआ है, ओके। और अब इससे एक कार्बन चेन लगी हुई है जो कि इस कार्बन चेन से लंबी है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी भी हम प्रायोरिटी किसको देंगे? हम प्रायोरिटी इस रिंग को देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू रिंग, दो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कम है एज कंपेयर टू द ब्रांच स्ट्रक्चर, लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो रिंग को दी जाएगी, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू द रिंग, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. मोहम्मद, कंफ्यूजन? Uh, Ma'am, I understood it, but in the first example, why did you write butane? एथ मैथ, तो इससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो ये था, इसलिए आई रोट ब्यूटेन, Okay. ठीक है। तो दैट वाज आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अगर बाहर कार्बन चेन लंबी है तो हमने कार्बन चेन को प्रायोरिटी दे दी, लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे। फिर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि अगर हमारी रिंग में कार्बन कम है लेकिन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है हमारा डबल बॉन्ड, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? रिंग को प्रायोरिटी देंगे। दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग, ठीक है। Oh, so basically, if they both are equal, then the priority will be to the ring. Okay. Yes, if both are equal, the priority will be ring, and if the double bond, if the ring functional group is attached to the ring, तो भी priority ring को जाएगी, and if there is a multiple bond in the ring, तो भी priority ring को ही जाएगी। priority order यही follow होगा, functional group, then multiple bonds, then number of carbon chain, ठीक है, Yes, ma'am. clear? यस ठीक है, मैम। चलो। एक छोटी सी चीज और है, अगर हमारे पास ये ग्रुप्स अटैच होंगे तो नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल आई हैव टेकन, तो इसको बनाने दो मुझे फिर से। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में टाइम जाएगा। अ, ये अगर मान लो हमारे पास ये है कंपाउंड और इसकी नेमिंग हमें करनी है, 1 2 3 4, ठीक। तो अब हमारा क्या, कार्बन चेन तो ये हो गई, राइट। तो एथ मेथ प्रोप, 3 कार्बन की चेन है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक मिनट, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन क्योंकि रूट वर्ड तो एन आएगा ना, साइक्लोप्रोपेन, एंड इसको नंबर 1 देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर जाएगा, साइक्लोप्रोपेन 1। अब नाम ये वाला यूज होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, यह सब रूल्स है, क्या कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये जो ये चेन लगी हुई है, दिस विल एक्ट एज प्रीफिक्स। अच्छा, इसमें भी नंबरिंग करेंगे, तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से उसको नंबर 1 जाएगा, ठीक है। तो तो खैर कोई मसला नहीं है, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट नहीं लगा तो नंबरिंग का मसला ही नहीं है। 1 2 3 4, अब ये 1 है ये 2 है, राइट। तो 2 एथ मेथ प्रोप ब्यूट, 2 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो गया बट समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। एक और एग्जांपल देख लो, देखो यहाँ पे उसी के ऑपोजिट एग्जांपल है। अब देखो, रिंग में हमारे पास 3 कार्बन है, लेकिन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू द बाहर वाली चेन, तो हम बाहर वाली चेन को एज अ प्राइमरी कार्बन चेन ले लेंगे, ठीक है। और नंबरिंग यहां से 1 2, 2 कार्बन है, इथेन, और 1 ओइक एसिड, और 2 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल, तो 2 साइक्लो
प्रोपाइल इथेन 1 ओइक एसिड. ओके. Okay, ma'am. Ma'am, मोहम्मद. यस. okay. So for the second example, right, the Mm-hmm. COOH1, Mm-hmm. the triangle is taken as two, right? So one, two, then it goes Yes, the on. triangle has given number 2. Why? Because a functional group has more priority than the ring structure. इसीलिए we have given the minimum number to the functional group. Okay. So then you Okay? wrote two cyclo, Yes. so cyclo is the triangle, and then the Yes. propyl because triangle has three sides, and then 3 ethane. Ma'am, carbons. ethane. Ethane means 2 कार्बन है ना, हमारी मेन कार्बन चेन में 2 कार्बन है. Okay. And then one oic acid because of the COH. That's it, right? Yes. Yes, that's it. Very Okay. good. Understood, ma'am. क्लियर. चलो लेट्स मूव आगे. अब इसमें मैम, इससे ज्यादा कुछ. यस यस मूसा. आपको इसमें टू साइक्लो कैसे मिला? टू साइक्लो प्रोपाइलेथेन. 2 साइक्लो ऐसे मिला कि जो हमारा रिंग है दैट इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन, राइट. सेकेंड कार्बन ऑफ आर मेन कार्बन चेन. ये हमारी मेन कार्बन चेन हो गई. क्यों? क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने वो वाला कंसेप्ट जो था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला उसको ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा जाती है. ठीक है. अच्छा, जी ठीक. क्लियर. तुम मुझे पुराने लेक्चर्स देखना, वो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. अगर कंफ्यूजन होगी, और अगर पुराने लेक्चर्स देखने का मन नहीं करेगा तो किसी संडे क्लास लगवा लेना. ओके मैम. ठीक है. लेकिन बस 19th 20th और 21 को मत लगवाना, उसके अलावा किसी भी दिन, क्योंकि उसमें मेरे प्रेजेंटेशन है. चलो. क्लियर. सब क्लियर हो गया. तो अभी Yes. अभी इसको रहने देते हैं. लेट्स मूव टू आइसोमेरिज्म. अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग 9th वाली जो क्लास करेंगे उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे हम यूपीएससी. ठीक है. चलो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आगे के जो टॉपिक्स है ना वो इजी हैं, उसमें डायरेक्टली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है और डायरेक्टली डायरेक्टली होता रहेगा, तो इतना टाइम नहीं लेगा इंशाल्लाह. लेट्स स्टार्ट. आइसोमेरिज्म बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. पहली कंडीशन ही यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर देखने के लिए कि वो स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है. ठीक है. Okay, ma'am. अच्छा. चलो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 थे: चेन, रिंग, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टोटोमर. उसके बाद स्टीरियो में कन्फॉर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल. वो अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्टार्ट शुरू करेंगे. पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि IUPAC विल बी डिफरेंट, राइट. IUPAC नेम डिफरेंट होगा. क्यों नेम डिफरेंट होगा? क्योंकि जो इसमें अभी डिफरेंट, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, चेन आइसोमर आएगा, रिंग चेन आइसोमर आएगा, पोजीशन आएगा, फंक्शनल आएगा, तो उसमें देखोगे कि मेन कार्बन चेन ही डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से IUPAC डिफरेंट हो जाएगा. चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चेन आइसोमर से. ओके. सो फर्स्ट इज चेन आइसोमर्स. तो बेसिक डेफिनेशन क्या है चेन आइसोमर्स की? कि वो तो देखो हर आइसोमर में ये तो रहेगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम बार बार नहीं बोलेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन. मतलब जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट होगी, किसी की मिथाइल होगी, सॉरी किसी की ब्यूटाइल होगी तो किसी की प्रोपाइल होगी. ये कैसे होगा? देखो ऐसे होगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव एक कंपाउंड ऐसा, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है. अब व्हाट आई डिड लाइक दिस. अब देखो, दो अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो देखो, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है. C4. व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. 3 3 6 7 8 9 10, C4H10, राइट. अच्छा, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, सॉरी कार्बन तो ऐसा है.
1 2 3 4 कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन देखते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 C4H10। सी हमारे पास molecular formula is same, but if you write the IUPAC name तो ये एथ मेथ प्रोप ब्यूट, यू ब्यूटेन आएगा, और ये क्या आएगा, ये आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट, सो वी हैव सेम molecular formula but different parent carbon chain। यहाँ पे प्रोपेन है और यहाँ पे ब्यूटेन है। ठीक है, तो these are chain isomers। Ma'am, should it be 3-methyl? Because it has 3 sides. 3 मिथाइल कैसे होगा मूसा? देखो, सॉरी मोहम्मद, 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग तो करोगे तो भी 1 2 3, इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3, किसी भी तरफ से नंबरिंग करोगे 2 ही आएगा। Okay, it's going to be at the center anyway. थोड़ा सा मेसी हो गया है, तो लेट मी राइट इट क्लियरली। ये था हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, दो कार्बन कहाँ कहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। अब अगर हम ये वाली चेन ले लें 1 2 3, ये वाली चेन ले लो 1 2 3, तो भी सेम है। और अगर ये वाली चेन ले लो 1 2 3, तो भी तो सेम ही है, 2 पे ही आएगा। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स आर दैट कि पेरेंट चेन्स डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर। POSITION। पोजीशन आइसोमर क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, बट जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी दैट विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के लिए फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए ना। तो ये OH लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे OH लगा दिया यहाँ पे। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आई एम नॉट काउंटिंग द हाइड्रोजन नाउ। तो 1 2 3 4 5, C5। राइट, अच्छा हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं। 3 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12, C5H12O। राइट, यहाँ भी देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12, C5H12O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इफ यू राइट देयर IUPAC नेम तो यहाँ पे 2 पेंटेन 2 ओल आ जाएगा, पेंटेन 2 ओल आ जाएगा, और यहाँ पे पेंटेन 3 ओल आएगा। राइट, Yes, ma'am. Yes. क्लियर? तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक है? मैम, यस, ये प्रोसेस में आपको पेंटेन टू ओल कैसा, हमें पहले फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस देना चाहिए ना? यस, तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की ना। आप नंबरिंग एंड टर्मिनल से तो स्टार्ट करोगे, बीच से टर्मिनल नहीं स्टार्ट कर सकते। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5। You can start numbering from the terminal carbon only. You cannot start numbering from the middle of the carbon, middle of the chain. नहीं, लेकिन OH हम्म, फंक्शनल ग्रुप है ना? हाँ, OH फंक्शनल ग्रुप है, आई एग्री। तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए IUPAC तो नेमिंग के फंक्शन, हिसाब से। यस, तो हमने दिया, तो हमारे पास एक और ऑप्शन तो था नंबरिंग करने का, 1 2 3 4। तो हमने रेड वाली नंबरिंग ना फॉलो करके ब्लू वाली नंबरिंग फॉलो की है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ऑल्सो नंबरिंग स्टार्ट हम लोग बीच से नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ से नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते ना। जो हमने हाँ, पीछे एग्जाम्पल लिया था ये COH वाला, वो टर्मिनल कार्बन था, इसलिए हमने वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी। ये ऐसा है, देखो COOOH, तो ये टर्मिनल कार्बन है, इसके बाद और कार्बन की चेन नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको टर्मिनल कार्बन अज्यूम कर लेंगे तो इसके बाद एक कार्बन की चेन है। ठीक है? यस मैम। ओके, Ma'am, ओके मैम। यस। ma'am, pentane is the root word. Two is prefix one, right? Pentane, pent is the root word, ane is the ane is the suffix 1, and ol is the suffix 2. Okay.
पेंट एन टू ओल। ठीक है, अगर इसमें कोई मिथाइल या इथाइल की चेन लगी होती तो वो हमारा प्रीफिक्स 1 हो जाता, प्रीफिक्स 2 हो जाता, ओके और अगर कोई साइक्लो कंपाउंड लगा होता तो वो प्रीफिक्स 2 हो जाता, प्रीफिक्स 1 हो जाता। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। पोजीशन आइसोमर क्लियर हो गया। चेन आइसोमर में पेरेंट चेन डिफरेंट होगी और पोजीशन आइसोमर में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है, यस। मैम वो अच्छा, सेकंड अब वाला पेंटेन थ्री ओल होगा ना? हाँ, इट इज पेंटेन 3 ओल, गुड। देखो इस पे 2 ओल है, यहाँ पे 3 ओल है, इसका मतलब ओल की पोजीशन, ओ एच की पोजीशन डिफरेंट है, सो इट इज अ पोजीशन आइसोमर। ओके, ओके मैम। चलो लेट, एक मिनट एक मिनट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, कभी कभी ऐसी चीजें आएंगी ना जहाँ पे यू गाइस विल गेट पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या, एक मिनट। जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि यहाँ पे यू गाइस विल गेट कंफ्यूज्ड कि इज इट अ चेन आइसोमर और इट इज अ पोजीशन आइसोमर। फॉर एग्जांपल, सी दिस एग्जांपल, होगा वो एक ही बट कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे ये है 4 कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ भी देखो, इफ यू सी, तो ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये भी तो पोजीशन ही तो चेंज कर रही है, इसकी इसकी और इसकी पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। यू कैन वंडर कि इट इज अ पोजीशन आइसोमर। जैसे एक पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दिया। अब देखो इसका भी, इफ यू सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट विल बी C6H14, और इसका भी इफ यू सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। ठीक है, अब यू गाइस कि इसमें तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो सकती है, ये कंफ्यूजन आ सकता होगा एक ही, लेकिन कंफ्यूजन आ सकता है। तो उसके लिए आई गिव यू अ ट्रिक कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर में क्या है। तो आई गिव यू अ मैजिक नंबर ट्रिक्स। देखो दो, वो सीखो एक्स और वाई। ठीक है, एक्स को कहो, एक्स को बोलो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। दो कंपाउंड तुम्हें दिए हुए होंगे, तो उसमें एक्स कहना, एक कंपाउंड के लिए एक्स कहना नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। ठीक है, और वाई कहना नंबर ऑफ ब्रांचेस, नॉट नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांचेस, सिर्फ नंबर ऑफ ब्रांचेस की ब्रांचेस, जो इथाइल मिथाइल की ब्रांचेस होंगी। अब देखो, अब एग्जांपल देखो, अब पहले और सुनो। इफ अगर एक्स वाई सेम आता है दोनों कंपाउंड्स का, मैंने फॉर एग्जांपल कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, अगर एक्स वाई दोनों कंपाउंड्स का सेम आता है तो दे आर पोजीशन आइसोमर, और अगर डिफरेंट आता है, इफ दे आर सेम तो वो पोजीशन आइसोमर है, एंड इफ इट इज डिफरेंट सो दे आर चेन आइसोमर। अच्छा कैसे होगा, अभी एग्जांपल समझ आ जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला देखो, एक्स वाई कह रहे थे ना, एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट, तो देखो इसमें एक्स क्या होगा, देखो एक्स वाई, एक्स वाई, इसमें देखो एक्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, एंड हाउ मेनी ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस 1, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी ब्रांचेस 1, तो एक्स वाई क्या आया यहाँ 51, यहाँ पे एक्स वाई क्या आया 51, 51 इक्वल, इसका मतलब दे आर पोजीशन आइसोमर, दे आर नॉट चेन आइसोमर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, एक से समझ नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये, ओके, यहाँ पे OH लगा दिया, 1 2 3 4,
एक दो तीन चार और यहाँ पे OH लगानी। लेट अस सी X क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस 0, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस 0, 4 0 4 0 सेम इक्वल, यानी कि दे आर पोजिशन आइसोमर। क्लियर? Yes, ma'am. But ma'am, we can just use the normal method, right? हाँ, नॉर्मली देख सकते हो, लेकिन जब बड़े कंपाउंड्स आ जाएंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पे उतना दिमाग चलता नहीं है जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो। बट अगर उससे तुम लोग देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाए, कभी कंफ्यूजन आ जाए, तो ये वाली ट्रिक लगा लेना, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बस 1 मिनट दो, अटेंडेंस लगवा के आ रहे हैं, फिर वील स्टार्ट तीसरा वाला जो हमारा मेटामर्स है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके मैम। Yes, so we are clear with chain and position isomers, right? I'm not making you do questions. Questions हम लोग होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? जितने क्वेश्चंस हमने उसके किए थे उतने नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। IUPAC के जितने क्वेश्चंस किए थे उतने आइसोमर से क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, तो वो उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ओके मैम। चेन और वो क्लियर हो गया। पोजीशन कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को तीनों में से? नो Yes, मैम। ma'am. Understood. चलो लेट्स मूव टू मेटामर्स। थर्ड वन इज मेटामर्स। अच्छा, मेटामर्स क्या होंगे? मेटामर्स सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे जहां पे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? जिनके ईदर साइड कार्बन चेन आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कीटोन आ गया, तो कीटोन की इधर कोई कार्बन चेन होगी और इधर भी कार्बन चेन होगी, ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया। और क्या हो सकता है? और हो सकता है SO3, राइट? तो इधर एक कार्बन चेन होगी इसके और इधर कार्बन चेन होगी, तो ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। और क्या फंक्शनल ग्रुप में आया? सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, और क्या हो सकता है? NH, इधर दूसरी चेन, इधर दूसरी चेन। तो दीज आर ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो मेटामर्स सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स में देखा जाएगा, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखेगा जिनमें ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। अब क्या होगा मेटामर्स? मेटामर्स वो दो कंपाउंड्स होंगे जिनके ईदर साइड ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कीटोन का, ठीक है, अब इस साइड आई हैव एडेड 2 कार्बन की रिंग, या फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, कार्बन कार्बन और इधर कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक? अच्छा, ओके, इन द नेक्स्ट अच्छा,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, इसका ख्याल रखना, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हाट आई डिड इज C डबल बॉन्ड O। अब इस साइड हमने एक ही कार्बन रखा और इधर मैंने नंबर ऑफ कार्बन एक एक्स्ट्रा कर दिया, तो इधर मैंने 4 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4। अब देखो, अब ऐसा मत करना कि ये मुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऐसे बना दिया है, ठीक। तो अब देखो, इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, 1 2 3 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होंगे, 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इनका आईयूपीएसी डिफरेंट हो जाएगा, आईयूपीएसी भी डिफरेंट हो जाएगा, और क्या डिफरेंट हो जाएगा कि एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है और इधर नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे मेटामर्स, ठीक है। तो दो कंपाउंड्स जिनके ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड, किसी भी एक साइड कार्बन चेन डिफरेंट हो जाए, दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स, ठीक है। मैम लेकिन ये पोजीशन आइसोमर के सिमिलर दिखता है ना। हाँ, पोजिशन ऐसे वही इसके बाद हम वही बताने वाले थे कि हम प्रायोरिटी मेटामर्स को देंगे, फिर प्रायोरिटी जाएगी, एक मिनट, प्रायोरिटी ऑर्डर लिख के लाए थे मेटामर्स, एम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, MIC, मेटामर्स पोजिशन एंड देन इट वाज, हाँ, प्रायोरिटी मेटामर्स को जाएगी, फिर पोजीशन को जाएगी, फिर चेन को जाएगी, फिर पोजीशन को जाएगी, ठीक है। अगर मेटामर्स भी है, चेन भी है, पोजीशन भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मेटामर्स को देंगे, ठीक है। So, ma'am, Mom, what's a simple priority what? definition for metamers? प्रायोरिटी मतलब ऐसे ही मान लो, जैसे अभी मूसा ने पूछा कि ये देखो, ये पोजीशन आइसोमर भी हैं और ये मेटामर्स भी हैं, और पूछ ले कि विच टाइप ऑफ दीज आइसोमर्स आर देयर, सो आर दीज, तो हम कहेंगे दीज आर मेटामर्स, नॉट पोजीशन आइसोमर, ठीक है। एंड what were you saying, Mohammed? I didn't understand. I didn't Ma'am, listen. what's a simple definition of metamers? Simple definition of metamers are that कि the same molecular formula है, वो तो same ही है, position of atoms on either side of bridging functional groups are different. This It's is the mainly the bridging functional functional group. group, right? हाँ, this is the bridging functional group. तो bridging functional group के either side जो position of atom होगी, that is different. Okay. Okay? क्या क्लियर कि प्रायोरिटी कैसी, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिख रहा है जिसमें पोजीशन आइसोमर भी है और मेटामर्स भी हैं, तो हम कहेंगे कि ये मेटामर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स नहीं कहेंगे उनको, ठीक है। ये कहने का Okay, मतलब था, ma'am. ओके। Yes, ma'am. पूछा क्लियर? यस मैम। ओके, चलो, तो हमने देख लिया चेन आइसोमर्स, देख लिए पोजीशन आइसोमर्स, देख लिए फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स देख लिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा, अब देखो, कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड और कीटोन ले लो, राइट। एल्डिहाइड और कीटोन ले लोगे अगर, तो उनका फंक्शनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, CHO और CO, राइट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो वो कहलाएंगे पोजिशन फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। जैसे C3H6O का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, लेट मी एक मिनट, हाँ, देखो, C3H6O, तो 1 2 3 कार्बन हो गया, और यहाँ पे हमने O लगा दिया, ये C3H6O है, राइट। और नेक्स्ट व्हाट आई डिड इज आई डिड दिस OH, अल्कोहल कह दिया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ, अभी देखो हाइड्रोजन नहीं पूरा हो पा रहा होगा, लेट मी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे होंगे, 3 6 7, 3 6 7, 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसको हटाओ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, इफ यू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या आएगा, 1
2 3 4 C4H8O, राइट। और यहाँ पे देखो C4H8O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम था, सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थी, लेकिन फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। ठीक है, मैम Okay, आईपैक mom. नेम्स क्या होंगे? IUPAC name, let us see the IUPAC name of these। IUPAC name तो डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम बता रहे हैं, दिस इज 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, पेंट 2 ओन। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, अच्छा एक कार्बन कम हो रहा है। मैम ब्यूट होगा ना? हाँ, एथ मैथ प्रॉप ब्यूट, सॉरी, मैथ प्रॉप ब्यूट। यहाँ पे एक कार्बन कम हो रहा है, 1 2 3, तभी तुम कहीं हाइड्रोजन कैसे वो इक्वल कैसे आ रहा है? अब देखो, अब हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, अब हो जाएंगे हाइड्रोजन भी इक्वल। ठीक है, अब देखो, अभी अभी तक हमारे कार्बन इक्वल, हमने कार्बन काउंट ही नहीं किया, हाइड्रोजन पहले काउंट कर लिया। अब देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है हमने, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 2 4 2 6 7 8 1 9 हाइड्रोजन हो रहा है। Mom, I think for ketone, aldehyde is the isomer group, नहीं, right? अल्कोहल अल्कोहल भी हो जाता है, अल्कोहल भी हो जाता है, एल्डिहाइड CHO आएगा। तो इफ इट इज लाइक दिस, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH ऐसे कर लो। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, यहाँ पे देखो आ रहा है ना CH8, 3 4 5 6 7 8। जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड ही हमेशा आए, मोस्ट ऑफ द टाइम एल्डिहाइड आता है। 1 2 Okay, mom. 3 4, ठीक है। और ये कार्बन C4H10H8O, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा एथ मेथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट 1। एल्डिहाइड के लिए क्या फंक्शनल ग्रुप आता है? अल, ब्यूटेन, ब्यूट 1 अल। ठीक है, ब्यूटेनल भी कह सकते हैं उसको, ब्यूटेन अल, ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, ई ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ ब्यूट 2 ओन। नेमिंग क्लियर है मूसा? जी मैम। फंक्शनल ग्रुप का और एग्जांपल देखते हैं, फंक्शनल आइसोमर के और एग्जांपल देखते हैं। लेट मी गेट मोर एग्जांपल्स। देखो, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एंड वी, अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। देखो कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, C2 3 4 5 6, C2H6O, राइट। यहाँ पे देखो C2H6O, कीटोन अल्कोहल हो गए ना, फंक्शनल आइसोमर। अतिया, तो आप ऐसे Yes, डिफाइन mom. नहीं कर सकते, देयर आर चांसेस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपने बोला है वो सही होगा, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, Okay, mom. ये ईथर है वैसे, ये कीटोन नहीं है, ये ईथर है, ये ईथर है, कीटोन नहीं है। क्लियर? ये होते हैं पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा, अब आपको कि कहाँ कहाँ आपको फंक्शनल आइसोमर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलेंगे? अल्कोहल एंड एस्टर्स, ये मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट सेइंग कि इनके अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये ज्यादातर दिखते हैं। ठीक है, और कौन दिख जाएंगे? एसिड्स और एस्टर्स, ये ईथर है, एसिड्स और एस्टर्स। एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या था? COOH, और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या था? COOR। ठीक है, तो एसिड्स और एस्टर्स आपको पोजीशन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइनाइड्स।
साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, ये भी पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएंगे। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड्स। अब अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के नाम याद होंगे तो यू कैन रिलेट कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन होंगे, वो ऑलवेज ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। ठीक, उसके बाद डाईइन और इन। डाईइन क्या होगा, देखो डाईइन ये हो जाएगा और इन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीज आर ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मतलब व्हाट आई एम Okay. सेइंग इज कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और किसी एक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड लगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो बता रहे हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन जो अतिया ने शुरू में ही बताया था, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इस तरह के पोजीशन ग्रुप आइसोमर्स यू माइट सी, और यही एनसीईआरटी में इतने ही हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहली कंडीशन तो वो तो सब में ही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, देयर आईयूपीएसी नेम विल बी डिफरेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में क्या था, पेरेंट कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होती है, राइट। फिर हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, राइट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा मेटामर्स। मेटामर्स क्या पढ़ा कि जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उनके ईदर साइड कार्बन एटम्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन। अच्छा, ये भी जो भी चीज हमने पढ़ रहे हैं, दो कंपाउंड्स को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, राइट। और फिर हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में हमने देखा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट था लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। ठीक है, Ma'am, यस। ma'am, what is cyanides? साइनाइड सी एन थे ना। And isocyanides is like, आइसो एनसी। जब जब हमारा कार्बन से देखो, ऐसा जब हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा, दीज आर साइनाइड्स। जब ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, दीज आर आइसोसाइनाइड्स। मतलब जो मेन कार्बन चेन है वो नाइट्रोजन से जुड़ी होगी, दैट आर आइसोसाइनाइड्स। जब मेन कार्बन चेन हमारी डायरेक्टली कार्बन से जुड़ी होगी तो दे आर साइनाइड्स। ठीक है, yes, ma'am. क्लियर। तो दीज वर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके बाद है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स बहुत थोड़ा सा दिया है, लेकिन हम सोचे थे ज्यादा पढ़ाने को, बट छोड़ो चलो। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स हमें सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड में ही दिखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऐसी जगह पे आते हैं, ये ऐसी जगह, अच्छा डबल नहीं, स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट, मतलब बेसिकली उनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, दैट आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, टॉटोमेरिज्म नहीं है क्या हमारे सिलेबस में? Ma'am, can ये you repeat टॉटोमेरिज्म, again for stereomerism? एक मिनट एक मिनट, हाँ बता रहे हैं। टॉटोमेरिज्म इज नॉट इन आवर सिलेबस, राइट। मेटामेरिज्म तक ही दिया हुआ है। ओके, I don't think it's. यस। तो इस स्कूल में पढ़ाया गया है टॉटोमेरिज्म किसी के, अगर पढ़ाया गया हो तो हम पढ़ा दें। No, ma'am. I had optical, geometric, and yeah, and हाँ तो वो metametric. तो, हाँ वो तो पढ़ा देंगे हम। अच्छा, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक डिटेल में पढ़ाया गया है या सिर्फ बता दिया गया है? No, no, no. It was only with examples. ओके ठीक है, चलो। मोहम्मद, आपके में टोटोमेरिज्म तो नहीं है स्कूल में? Uh, Ma'am, I don't think so, but I just know that we did metamerism. ओके ठीक है, चलो। और मूसा से पूछेंगे तो मूसा कहेगा आई रियली डोंट नो। नहीं मैम, नहीं मैम है, वो नहीं है। नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है। हमें लगा है तुम बोलोगे आई रियली डोंट नो।
ठीक है, तो चलो स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। स्पेस में अरेंजमेंट से मतलब जब हम लोग अगर हम लोग डीप में पढ़ते स्टीरियो आइसोमर्स, तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन और वो सब प्रोजेक्शन पढ़ते, तो उनमें अरेंजमेंट डिफरेंट होता। ठीक, तो बेसिकली व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज दैट molecules that have same molecular formula but different arrangement of atoms in the 3D space। ठीक है, ओके मैम। ओके। अच्छा, उसमें we'll have two types, geometrical and optical। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में भी अलग अलग टाइप्स के आएंगे और ऑप्टिकल में भी अलग अलग टाइप्स के आएंगे। ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड्स होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? सी डबल बॉन्ड सी में, सी डबल बॉन्ड एन में, और कहाँ देखने को मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? सी डबल बॉन्ड ओ में, एन डबल बॉन्ड एन में। तो ऐसी जगहों पे यू विल फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जहां पे रोटेशन अलोंग द बॉन्ड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वहां पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फाउंड इन दोज कंपाउंड्स वेयर द रोटेशन अलोंग द बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। देखो डबल बॉन्ड होगा तो आप रोटेट, देखो सिंगल बॉन्ड होगा तो आसानी से रोटेट हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तो अगर आप रोटेट करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहां मिलते हैं जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक, यस मैम। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेसिकली एक पूरी टेक्निक है। क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि एक हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? नॉर्मल लाइट जो हमारे घरों में से निकल रही है, ठीक है, वो हर तरफ रेडिएट करती है, राइट। अच्छा, उसको हम एक यू कैन से एक प्रिज्म से पास कर, निकोल प्रिज्म से पास करवा रहे हैं। ठीक, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, निकोल प्रिज्म से हमने पास करवाया। ठीक, जब हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास करवाया तो ये एक डायरेक्शन में सारी अलाइन हो जाती है। ठीक, अच्छा, एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई। अब हमारे पास एक कंटेनर होता है जहां हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इस लाइट को हम यहाँ से पास करवाते हैं, इस लाइट को हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करवाई। अब अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने लाइट को रोटेट कर दिया तो वो हो जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने लाइट को रोटेट नहीं किया तो वो हो जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हमारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड्स जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहे हैं इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड नहीं करता, तो वो हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्लियर? ओके मैम। इसको थोड़ा सा हम एक शॉर्ट में, रुको शॉर्ट में बताते हैं फ्लो चार्ट से, ताकि क्लियर हो जाए। एक सेकंड दो बस, हमारे पास एक फ्लो चार्ट है इसको समझाने के लिए। यस, देखो ये भाई, मान लो वी हैव एन ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, एक ऑर्डिनरी लाइट ली हमने, उसको हमने पास करवाया निकोल प्रिज्म से। ठीक, निकोल प्रिज्म से वो पास करी। निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, पहले ये ऑर्डिनरी लाइट थी, फिर हमने उसको निकोल प्रिज्म से पास करवाया, अब ये कहलाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पास होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये रोटेट करवाए या तो रोटेट नहीं करवाए। रोटेट करवाएगी तो कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट नहीं करवाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए तो कोई बात ही नहीं है। अब ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो कैसे रोटेट करवा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर क्लॉकवाइज करवा रहे हैं तो उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हैं तो उनको हम कहते हैं लेवो रोटेटरी।
लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी, क्लियर? Yes, So, ma'am. wait, ma'am, OL, right? यस, What is it again? OL इज ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, So, नॉर्मल कोई भी लाइट, okay, ये so it'll व्हाइट लाइट ले just लो, go to Nico. निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या करता है, लाइट को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। Okay, and then it'll दिस इज नॉट pass through गिवन इन the एनसीईआरटी, plane. आई एम जस्ट Oh, एक्सप्लेनिंग okay. यू I कि was finding it actually, so I was confused. यस, इट इज नॉट गिवन एनसीईआरटी में, बस ये बता दिया है कि स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाओगे, आप बायोमोलिक्यूल्स में जाओगे, वहां पे जब आपको शुगर्स पढ़ाएंगे वो, तो वो आपको कहेंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, डेवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी बताओ, तो वहां पे कैसे निकालेगा इंसान अगर यहाँ पे सीखेगा नहीं तो? अजीब सिलेबस है भाई। Yes, अब ma'am. यहाँ पे अगर अगर इन्होंने सिखाया होता डेवो लिवो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी, ये सब निकालना, तो 12th क्लास में जाके इंसान निकाल सकता है, लेकिन नहीं, फिर वहां पे फिर से शुरू से पढ़ाओ कि हाउ टू फाइंड आउट आर कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू फाइंड आउट एस कॉन्फ़िगरेशन, डेक्सो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, पूरा पढ़ाना पड़ता है वहां पे फिर से। But ma'am, right now this won't come in our syllabus, right? नो, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बस इतना समझो कि जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस। दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल कौन दिखाते हैं, जिनके बीच में डबल बॉन्ड्स होगा। ऑप्टिकल कौन दिखाएंगे, ऑप्टिकल तो वो कायरल, एक कायरल कार्बन आ जाते हैं, वो छोड़ो। ठीक है, तो बस इतना समझ लो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ठीक है, Yes, ma'am, understood. क्लियर? आइसोमेरिज्म क्लियर? आइसोमेरिज्म छोटा सा टॉपिक, बहुत थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो इसके बाद है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज है सिलेबस में, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और Yes, ma'am. हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ओके, चलो, तो बेसिकली क्या होता है, अब कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी कि सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा रिएजेंट होता है उनको हम सबस्ट्रेट कह देते हैं, इजी। ठीक, तो जो हमारा रिएक्टेंट्स होता है वो है सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिएजेंट होगा जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, एज कंपेयर टू मेटल्स वगैरह, थोड़े स्टेबल होते हैं। तो उनको उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा यू कैन से स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स यूज करने पड़ते हैं, या स्ट्रॉन्ग चीजें यूज करनी पड़ती है उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो उस वो क्या करते हैं, बेसिकली हम कहते हैं कि वो जो हमारे रिएजेंट्स हैं वो हमारे रिएक्टेंट पे अटैक कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। इफ यू गाइज माइट हैव हर्ड कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन बहुत एसिडिक कंडीशन में हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानते हो मिथेनोजेंस होते हैं, वो मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, अब मीथेन गैस बनाते हैं तो वो बहुत हाईली एसिडिक कंडीशंस में होती हैं वो बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि वो उनको फेवर करता है मीथेन बनाने में। तो वही, वो बेसिकली जो रिएजेंट हो गए वो क्या हो गए, वो एसिडिक कंडीशन वो रिएजेंट हो गई। ठीक, तो रिएजेंट कुड बी एनीथिंग, दे कुड बी इधर कंपाउंड, दे कुड बी आइदर द एनवायरमेंट, दे कुड बी इधर द एनवायरमेंट जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्लियर? तो जो रिएक्टेंट है वो सबस्ट्रेट कहलाएगा, और जो रिएक्टेंट के अलावा चीजें हम अपने रिएक्शन में डाल रहे हैं दैट इज अटैकिंग रिएजेंट। कभी कभी मीडियम भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, देन अब इन दोनों के रिएक्शन से जो बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारा एक मेन प्रोडक्ट होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। ठीक है, अब उन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से अपने मेन प्रोडक्ट को निकालने के लिए इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। वहां पे हमें सिखाया जाएगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हैं और हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक, तो जो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बने हैं दे आर कॉल्ड बाई प्रोडक्ट्स। ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा,
द रिएक्टेंट जो कि नए बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन सप्लाई करता है, और उसके अलावा जो जो कार्बन के अलावा जो हमारा वो होगा, जो हमें नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कार्बन दे रहा है, उसके अलावा जो भी चीजें होंगी अपार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट, दैट इज अटैकिंग रिएजेंट। अच्छा, अब रिएक्शन काइनेटिक्स या रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली हर स्टेप, जैसे जैसे कौन कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है, जो हमारा रिएजेंट है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है, रेडिकल बना रहा है, मतलब रेडिकल क्या होता है अभी आगे पढ़ोगे, रेडिकल बना रहा है या अनायन बना रहा है, कटायन बना रहा है, ये सब चीजें जो स्टेप्स एक्सप्लेन करें उनको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो द सीक्वेंशियल स्टेप्स, जो कैसे पूरी रिएक्शन हमारी प्रोसीड करी है, हर स्टेप जो एक्सप्लेन करे, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर? यस क्या मैम। क्या हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पता चलेगा? हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पता चलेगी, हमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कितनी एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को टूटने के लिए वो पता चलेगा, जो नया बॉन्ड बन रहा है वो बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जो हमारी रिएक्शन है वो किस रेट से प्रोसीड कर रही है, मतलब हमारी फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन लगेगा इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में, ये सब चीजें जो बताए, दैट आर द स्टेप्स आर नोन एज reaction mechanism. No one is going to ask you what is reaction mechanism, but you should know कि reaction mechanism होता क्या है। ठीक। अच्छा, अब जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो तरह से टूटते हैं, उनके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, या कार्बन के साथ कोई और बॉन्ड, कार्बन के साथ कोई और जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के साथ समथिंग इज अटैच्ड ए, ऐसे समझ लो। तो ये जो जो बॉन्ड टूटेगा, इट इज डन बाय टू टाइप्स, टू मैकेनिज्म, या टू, यू कैन से टू क्लीवेज होते हैं, दो तरह के क्लीवेज होते हैं। क्या? एक तो हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, और एक होमोलाइटिक। क्या होता है होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक में? देखो, जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमारे पास जो HBr समझ लो, अगर ये हेट्रोलाइटिकली टूटेगा तो एक जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस आएगा, और जो इलेक्ट्रो दूसरे वाले पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो जो अभी तक हम लोग बॉन्ड तोड़ना सीख के आ रहे हैं चैप्टर 1 से, दैट इज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो मतलब जो एक के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, एक मतलब ये बॉन्ड टूटा तो इस इलेक्ट्रॉन थे, Br ने पूरे ले लिए और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, ये होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में। ठीक, क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड बना था ये शेयरिंग से बना था, राइट? यस मैम। Ma'am, can you repeat जब ये it बॉन्ड again? तोड़ने की बारी आई तो, यस, Ma'am, I actually don't understand. Can you repeat like the whole ओके चलो, homolytic cleavage? क्लीवेज, ठीक है, देखो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक, अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि क्या है, कैसे है, नाम वाम देना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे होगी, जो हमारा मेन एम है। ठीक है, तो अब रिएक्शन होने के लिए कोई बॉन्ड टूटेगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, राइट? रिएक्शन तभी तो होगी। Yes, ma'am. अच्छा, अब ये जो बॉन्ड है, मतलब का एक एक तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एक तो कार्बन होगा, कार्बन के साथ मान लो कुछ भी जुड़ा है, ए कुछ भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब ये जो बॉन्ड हमारा टूटेगा, ये जो रेड वाला बॉन्ड है ये टूटेगा, ये दो तरह से टूट सकता है। एक तरह से टूट सकता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, और दूसरी तरह से ये टूट सकता है, दैट इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्या है, हेट्रोलिटिक क्या है, अभी समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक कैसे कहते हैं। हेट्रोलिटिक तब होगा, देखो हमें ये तो पता है कि कार्बन के साथ जो भी एलिमेंट बॉन्ड बनाया हुआ है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट? तो अब अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, if this bond is breaking, and what will happen, अगर ये हेट्रोलिटिकली टूट रहा है तो इसमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो एक एलिमेंट होगा उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। मतलब अभी तो ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Br लगा दिया,
ठीक। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा तो Br इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो कार्बन वाला अपना कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कार्बन के पास न्यूट्रल में जितने थे उससे एक कम हो गए, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड टूटता है उनमें चार्जेस आ जाते हैं। ठीक। अच्छा, तो जो अब इसको हम कहते हैं कार्बोकटायन। ठीक। कार्बोकटायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं कार्बोकटायन, और अगर दूसरा वाला भी कार्बन होता तो उसको हम कहते हैं कार्बन आयन। ये Br है तो कुछ कह नहीं रहे हैं। ये है कार्बोकटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकटायन। ठीक। तो व्हेन देयर इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज वी गेट अ कार्बोकटायन। ठीक। ओके मैम। यस मैम। मोहम्मद, यस मैम, मूसा, अंडरस्टूड। यस मैम। ओके। चलो अब पढ़ते हैं होमोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन थोड़ा नया होगा, एक मिनट। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, ये कार्बन कार्बन है। ठीक है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, वो हम आपको अगली क्लास समझाएंगे, अभी नहीं समझा रहे हैं हेट्रोलिटिक का भी कैसे क्या हो रहा है। अ, अभी मेन समझ लो, ये दोनों कार्बन, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था। अब जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कोई एक दूसरे को नहीं देगा। ठीक है। तब क्या होगा, तब इसके ऊपर एक ऐसा आएगा, इसके ऊपर एक ऐसा डॉट आएगा, मतलब इसके ऊपर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया हुआ था इसके ऊपर, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल सिर्फ फ्री रेडिकल से ही जुड़ेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं जुड़ता है। तो ये आइदर इसके साथ जुड़ जाएगा या कोई और फ्री रेडिकल अगर इसके आसपास होगा तो ये उससे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। तो होमोलिटिक, मैम, यस। लेकिन अगर ये कार्बन वाला फ्री रेडिकल अगर ब्रोमीन वाला फ्री रेडिकल जाके मिलेगा तो ब्रोमीन उसका कार्बन का भी एटम ले लेगा ना, तो इसकी वजह से कार्बन एक कार्बोकैटायन हो जाएगा। नहीं, वो कार्बन जब ब्रोमीन कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसे देखो, अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पास आएंगे तो पहले तो बॉन्ड बनाएंगे ना। हाँ जी। बॉन्ड बनाए बिना तुमने तोड़ लिया। अब CBr, जब नए बॉन्ड बन गए हमारे प्रोडक्ट में तो हम इसको क्यों तोड़ेंगे, जब हमें इसको तोड़ना, ये हमने एग्जाम्पल लिया था CBr। मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, कुछ भी हो सकता है। जनरली ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन हेलोजन के साथ देखी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेलोजन ले लिया है। ओके मैम। ये जो देखो 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 ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो हमारे पास एक ये है C डबल बॉन्ड C। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे Br2 है। अब मैंने मान लो कोई एसिड यूज किया, एसिडिक मीडियम, और अब मुझे ये रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H3C है, ये H है, ये H है। अब यहाँ पे होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक। ये बॉन्ड टूटेगा जब, तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, ये समझ में आया। जी मैम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। Br क्या है, Br की वजह से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, तो ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट। Br भी क्या करेगा, अपने बॉन्ड तोड़ देगा। अब दो Br है तो इनमें भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो एक Br पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक Br पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव वाला Br है ये आके इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जो नेगेटिव वाला Br है ये जाके इस पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा H3C प्लस CH2Br प्लस HBr। ऐसे ये बेसिकली हम आपको क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि ये जो हम प्रोडक्ट जनरेट करवाते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो एक्चुअली ऑन पेपर हो क्या रहा होता है, तो ऑन पेपर यही हो रहा होता है कि अब वो तो आई कांट एक्सप्लेन कि सोल्यूशन में क्या हो रहा है, बट ऑन पेपर यही हो रहा होता है कि कार्बन के बॉन्ड्स टूट रहे, जो वीक बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और जो
इधर अटैकिंग रिएजेंट्स के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, फिर ऑपोजिट रिएक्शंस वाले जुड़ जाते हैं। ठीक है। ओके So, मैम। ma'am, if it was similar to Cl2, it'll be the same case, right? Plus हाँ सर, HCl. यस, सीएल भी अगर यहाँ पे सीएल होता तो हमारे पास प्रोडक्ट में HCl आ जाता। Okay. ये दिस इज नॉट, ये आप रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप अच्छा पता है यहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आएगा 11th में, ये सारी चीजें 12th में यूज होंगी, यहाँ पे यूज भी नहीं है ये Ma'am, they're सब, giving क्योंकि so many equations in the textbook, so I get so confused. कहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। Like in the fission of covalent bonds and हम्म। substrate and तो reagent, there's so many, यस right? एग्जैक्टली तो वो बस आपको समझाया गया है कि बॉन्ड कैसे टूट रहा है, क्या टूट रहा है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ये पता है क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये जब आप क्लास 12th में अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर पढ़ोगे, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, अमीन्स पढ़ोगे, वहां पे ये चीजें यूज होंगी, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। या अभी हाइड्रोकार्बन में जाओगे ना, तो जब एल्कीन्स की रिएक्शन पढ़ोगे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, तो वहां पे कि सी डबल बॉन्ड सी जो टूटता है ना, वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से ही टूटता है। मतलब जब सी डबल बॉन्ड सी पे आप सनलाइट डालोगे तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ही होगा, तो कार्बन केटाइल फ्री रेडिकल ही बनेगा, इसलिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड में वॉट एवर आर द रिएक्शन इन एनसीईआरटी वहीं से आता है, बाहर से वो रिएक्शन नई रिएक्शन बना के नहीं देंगे। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप अपनी बुक की रिएक्शन ही अच्छे से समझ लो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड क्या, आप जो कंपटीशन देते हो, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, जो नीट और जेई के कंपटीशन होते हैं उसमें भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एनसीईआरटी के बाहर जाते ही नहीं है, प्योरली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं सारे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्योंकि ये दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में वो बाहर जाते हैं, उसमें उसमें अच्छे खासे कंसेप्ट लगाते हैं, वो फिजिक्स के लेवल का पेपर होता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली। ठीक है। तो अभी बस समझ लो कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। अब मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, कौन सा ऑर्बिटल टूट रहा है, क्या टूट रहा है, ये सब आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट इन दिस क्लास, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। उससे पहले एक चीज समझो, स्टेबिलिटी, उस जो मेन क्वेश्चन जहां से आना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है। तो जो हमने कार्बोकैटायन C+ बना के, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्ब, देखो कार्बन है और कटायन है। ठीक है। तो ये कार्बो, इसका C, कार्बन, इसका N हट जाता है तो ये बन जाता है कार्बोकटायन। अब क्लियर हो गया, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा कार्बोकटायन। ठीक है। तो स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की कैसी होती है, देखो, जो 3 डिग्री कार्बोकटायन होते हैं, मतलब ये मान लो प्लस है, इसके पास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। फिर इससे कम स्टेबल ऐसा कार्बन, सिर्फ 2 ही सेकेंडरी कार्बन। फिर इससे कम स्टेबल क्या होता है, इससे कम स्टेबल हो जाएगा ये वाला, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ये वाला। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इफ आई राइट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ C+, so 3 degree is the most stable, tertiary is the most stable, secondary is less, and primary is the least stable, and then we have a single कार्बोकैटायन। इसी का उल्टा इफ यू सी कार्बन आयन की बात हो जाए, कार्बन माइनस की, तो वहां पे C- इज द मोर स्टेबल, देन वी हैव 1 डिग्री, देन वी हैव 2 डिग्री, एंड देन वी हैव 3 डिग्री। ठीक। कार्बन आयन कैसे बनेगा, जब मान लो कार्बन से अभी बना था ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब हमने तोड़ा था तो यहाँ C- बना था, तो दैट इज, What do we mean by 2 degree? Like carbon is attached to three यस, other one. कार्बन इज अटैच्ड टू दिस थ्री, दिस 2 डिग्री में एक दो तीन, हाँ तीन तरह, नहीं दो तरफ से जुड़ा होगा, 2 डिग्री में दो तरफ से जुड़ा होगा ना। Okay. So it should be attached to two other carbons. यस, 2 other कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 other कार्बन। सी थोड़ा और Okay. तेरे को हम क्लियरली दिखाते हैं। देखो 3 डिग्री जो हम, इफ आई व्हाट आई मीन बाय 3 डिग्री इज दिस। ठीक है। देन दिस इज 2 डिग्री, देन दिस इज 1 डिग्री, देन दिस इज कार्बन, ये हर तरफ से H से जुड़ा हुआ।
ठीक है, दिस इज व्हाट आई मेंट फ्रॉम बाय 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री. क्लियर? Okay, ma'am. Ma'am, and when the तो stability of the carbocation is high, then what happens? बेसिकली जब जो हमने बताया ना, वो प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो जब आप रिएक्शन करवा रहे होगे तो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बनेंगे और 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी बनेंगे. ठीक, क्योंकि दोनों ही बनेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है. तो जो प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से डिसाइड होता है. कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, उसने जो दैट इज मोर स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे समझो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कंपाउंड दिस. ये कंपाउंड है मेरे पास. ठीक है. अब कार्बन, मान लो ये कंपाउंड है. ये कंपाउंड मेरे पास बना, एक कंपाउंड ये बना, और एक कंपाउंड मेरे पास ये बना आफ्टर रिएक्शन. ठीक. तो अब देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना होगा, ये किस, इसका प्रिकर्सर क्या रहा होगा? इसका प्रिकर्सर रहा होगा ये. राइट. और इस ये जो कंपाउंड बना होगा, इसका प्रिकर्सर रहा होगा ये. राइट. Yes, ma'am. तो इफ आई हैव टू चूज द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आई विल चूज दिस वन. क्यों? क्योंकि इसका जो प्रिकर्सर था वो ज्यादा स्टेबल था. ज्यादा स्टेबल था, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बना होगा, बहुत देर तक रहा होगा रिएक्शन में, तो ज्यादा रिएजेंट इस पे एक्ट, ज्यादा रिएजेंट के साथ जुड़ पाए होंगे, नया बॉन्ड बना पाए होंगे. ठीक है. सो दिस इज द मेजर. ऐसे बेसिकली हम लोग ये सब इंटरमीडिएट्स हैं. ठीक है. तो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी से वी डिसाइड आर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. Okay, ma'am. Ma'am, this is all coming like in NCRT, right? Yeah, this is all given in NCRT. If you'll see, तो ये सब NCRT में दिया हुआ है. This is on page number 271. 271 में जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दी हुई है. टर्शरी ब्यूटाइल कटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन. इसके बाद अभी ये सब दिया हुआ है. इसके बाद जो देखो, शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकैटायन का शेप कैसा है, ये सब चीजें आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास. उसके बाद आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, ऑल दीज थिंग्स. इन द नेक्स्ट क्लास वील ट्राई कि हमारा एटलीस्ट ये प्यूरिफिकेशन वाले टॉपिक से पहले तक सब खत्म हो जाए. ठीक है. तो वील ट्राई कि 8.7.10 तक वील फिनिश. उसके बाद हमारे पास बस 2 क्लास का काम बचा रहेगा, वो हम लोग कर लेंगे. ठीक है. Ma'am, यस. ma'am, in the next class, can you explain the slope thing again? Because I didn't understand it properly. व्हाट? Can you explain this same part आज ठीक है. next ओके. class? इन द नेक्स्ट क्लास यू विल गेट. जब हम बॉन्डिंग और प्लेन और ये सब एक्सप्लेन करेंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा. तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अगेन यहाँ से क्या बॉन्ड क्लीवेज वाला थिंग आई विल एक्सप्लेन अगेन. एक बार तुम रीड करके भी आना, तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Okay, ma'am. And ma'am, can you also explain the benzene thing I asked in the बे, start of the class? बेंजीन वाला चीज क्या था? एक मिनट, यहाँ पे होगा मेरे पास लिखा हुआ. नहीं लिखा है. व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, एक मिनट रुको. ठीक है ना. सो व्हाट वाज द कंफ्यूजन मोहम्मद, बेंजीन वाले में? देखो, Like, ma'am, while बेंजीन you were में. doing the questions, right, I couldn't understand how to do यस. it properly. अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. ठीक है. ओके. इस पे हमारे रिंग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. ठीक. अब देखो, OH और NO2 में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? OH की, ऑब्वियसली. ठीक. तो वील स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेयर 1. अब देखो, दो ऑप्शन है. आइदर वी कैन गो फ्रॉम हेयर और वी कैन गो फ्रॉम हेयर. ठीक. ये है Cl यानी क्लोरो यानी C, और ये है नाइट्रो यानी कि N. C पहले आता है, तो वील गो फ्रॉम द पिंक वाली नंबरिंग कि अल्फाबेटिकली कम नंबर मिले इसको. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 कैसे नंबरिंग करेंगे? देखो, बेंजीन का डायरेक्टली वी कैन राइट बेंजीन. ठीक. बेंजीन का नाम बेंजीन ही है, और इसके 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है, बेंजीन 1 ऑल. ठीक. अब
3 क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लेते हैं, 3 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजीन 1 ऑल। मैम यस। वो वन को भी ड्रॉप करके हम बेंजीनॉल हाँ, बोल सकते हैं ना? बेंजीनॉल कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ई तो हट ही जाएगा पहले ही, और अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो भी वो सही होता, हमने बताया ही था कल भी, ये बेंजीनॉल हो जाएगा डायरेक्टली। 1 अगर आप पोजीशन 1 की नहीं भी बताओगे तो भी सही है। अच्छा, इसकी जगह हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, फिनॉल डायरेक्टली, 3 क्लोरो 5 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ये फिनॉल भी तो है, कॉमन नेम। Yes, So you can ma'am. also report this answer, 3 chloro 5 nitro phenol। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं मोहम्मद, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये है। Ma'am, can you take an हम्म example where there's a branch structure and then there's also हम्म another functional group attached to the the benzene structure? ओके, देखो ये वाला लेते हैं, देखो ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और हमने कर दिया ये ठीक है। Yes, ma'am, this one. चल, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट भी आ गए। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, तो बेंजीन हमारी मेन कार्बन चेन हो गई, राइट। अब देखो, हमें लोग इसको ठीक है, इसका नाम है इसको बेंजोइक एसिड भी कहते हैं कॉमनली, और अगर इफ यू वो डोंट वांट टू राइट द कॉमन नेम, यू कैन राइट बेंजीन 1 ओइक एसिड। बेंजोनोइक एसिड वही तो था, ठीक है। ये हमारा रूट वर्ड सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड आ गया, राइट मोहम्मद। Yes, ma'am, understood that. अच्छा, अब हमारे पास बचा है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, राइट। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं, इसमें देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। देखो, यहां से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, वही वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो डायरेक्टली हमारे रिंग से अटैच होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइदर वी कैन गो 1 2 3 4, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, और 1 2 3 4, दो ऑप्शंस है हमारे पास। लेकिन अगर हम येलो वाले पे जाते हैं, तो हमारे पास 3 साइड चेन्स मिलेंगी, 1 2 3, राइट। अगर हम येलो वाले पे जाते हैं, येलो वाला मतलब ये देखो, ये समझ लो, अगर हम इस वाले पे जाते हैं तो हमें 3 साइड चेन्स मिलेंगी, तो हम वो वाला कार्बन चेन यूज करेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। चलो अब नंबरिंग करते हैं, ये है 1 डैश, ये है 2 डैश, ये है 3 डैश, और ये है 4 डैश, ठीक है। चलो अब नंबरिंग करते हैं, क्या है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है ना, तो इस कार्बन की जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, ब्यूटाइल, राइट। लिख लेते हैं, अभी हमने मेन चेन में नहीं लिख रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं, ब्यूटाइल। अब देखो, 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, 1 डैश और 3 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है, और 2 पे इथाइल लगा हुआ है, तो 2 डैश इथाइल, 1 डैश कॉमा 3 डैश डाई मिथाइल ब्यूटाइल, राइट। अब इसको अरेंज, इसके साथ जोड़ दो, जोड़ते हैं चलो। 2 डैश, इसको ब्रैकेट में भी रखेंगे, अब कहाँ पे लगा हुआ है ये बेंजीन के, नंबरिंग देखो 1 2 3, हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है, मिनिमम नंबर देंगे ना। चलो, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। 3, फिर अंडर ब्रैकेट 2 डैश इथाइल, 1 डैश कॉमा 3 डैश डाई मिथाइल ब्यूटाइल बेंजीन 1 ओइक एसिड। क्लियर। So basically, ma'am, it's always given benzene. I just need to learn the different types of this functional groups, right? यस यस एग्जैक्टली।
बेंजीन में Okay. अगर फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न करना पड़ेगा कि क्या नाम देना होता है। लर्निंग थोड़ी आईपीएससी में है, लेकिन आपको वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है। जब आप क्वेश्चन करो तो जो आपने लिखी हुई है चीजें ना, उसको सामने लेके बैठो, देख देख के करोगे तो इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि वो अपने आप लर्न हो जाता है। जैसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप लर्न हो जाता है, वैसे ये रूल्स भी अपने आप लर्न हो जाते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, Yeah, चलो तो सी understood. यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विथ द सेम बॉन्ड फिजन वाला थिंग, एंड विल ट्राई टू कंप्लीट आर at least this fundamental concepts in organic chemistry reaction mechanism wala part we'll try to finish in the next class, and then we'll move to method of purification.